everyone, today we will do Class 8 English Supplementary Reader It So Happened book chapter 5 Princess September. Today we will do its part 1. Here is a short summary of this part 1. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have remembered so many names. One day the king decided to call them January, February, March, true of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. ये थाईलैंड का एक स्टोरी है जहाँ पे एक और किंग और एक क्वीन थे। क्वीन की बहुत सारी बेटियां थी, इसलिए उसको बहुत कंफ्यूज लग रहा था कि किसका नाम क्या दे, और उसे याद रखना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तो एक दिन राजा ने क्या किया, उनका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे उन्होंने अपने सियामीज लैंग्वेज में रखना शुरू किया, और उनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम सितंबर तक पहुंचा। इन टोटल उनकी 9 बेटियां थी। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. इस सियाम के जो राजा थे, उनका एक हैबिट था कि वो उनके बर्थडे में किससे गिफ्ट लेने की बजाय दूसरों को गिफ्ट देते थे। एक साल उन्होंने अपने बर्थडे में अपनी बेटियों को सोने के पिंजड़े में एक एक पैरट को गिफ्ट किया। अब सारे 9 प्रिंसेस के पास पैरट थे। उन्हें बहुत खुशी लग रही थी और उन्हें अपने पैरट के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। The princesses were very proud of their parrot and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. सारे प्रिंसेस अपने पैरट्स को कुछ ना कुछ सिखाने में लग जाती थी, और उन्होंने अपने पैरट्स को सिखाया गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली, और वो सब इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज मतलब 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. जब एक दिन प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि उनका पैरट मर जाता है और वो अपने केज में पड़ा हुआ रहता है। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. जब उसका पैरट मर जाता है तो वो बहुत जोर से रोने लगती है, और उनकी जो मेड थी मतलब उनकी जो दासी थी वो और तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें से बोल रही थी कि रोना बंद करने के लिए। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better to go to bed without any supper. जब प्रिंसेस ज़्यादा रोने लगी तो उनकी जो दासियां थी वो जाके क्वीन को बोली कि प्रिंसेस रो रहे है, तो क्वीन गुस्से से बोली ये सिर्फ नॉनसेंस और स्टफ है। उन्होंने क्वीन को बोला कि उन्होंने क्वीन को बोला कि प्रिंसेस को लेकर सुला दो, और वो बिना कुछ खाए पिए। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. So उन दासियों को कुछ पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस को सुला दिया, और वैसे ही वो थी और वो चले गए। And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. जब वो अपने बेड में सोकर रो रही थी, उनको भूख लगी, और तभी उन्होंने देखा कि उनके खिड़की के तरफ से एक छोटी चिड़िया उनके घर में आ रही है। She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और वो चिड़िया अंदर आके गाने लग गई। वो राजा के गार्डन के बारे में बहुत डिस्क्राइब करके गाती है। When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. उसके गाना बंद होते ही प्रिंसेस का रोना भी बंद हो गया, और वो भूल भी गई कि उसने खाना भी नहीं खाया था। That was a very nice song, she said. ये बहुत अच्छा गाना था, उन्होंने बोला। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird.
वो लिटिल बर्ड बोलती है कि तुम अपने पैरट की जगह मुझे रख सकती हो। It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पैरट के जैसे अच्छे सुंदर तो नहीं दिखती हूँ, लेकिन मेरा वॉइस बहुत अच्छा है। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. Princess September बहुत खुश हो जाती है और वो ताली बजाने लगती है। तभी वो चिड़िया अंदर आके उसके बेड के ऊपर एक कोने में बैठकर गाना गाता है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो जाती है। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and the Princess September was very proud and happy. दूसरी सुबह जब वो उठ के देखती है तो वो चिड़िया वहीं पे उसके बेड के पास बैठी रहती है। मेड सर्फ उनकी जो दासियाँ थी वो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, तो प्रिंसेस अपने हाथ से उस चिड़िया को खाने के लिए देती है और उनकी जो सॉसर में उसे नहा देती है। उसके बाद वो चिड़िया फिर से अच्छे से गाने लगती है, तो मैं उनकी जो दासियाँ थी वो भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा चिड़िया कभी देखा भी नहीं था। Now, I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, as the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. And for each of them, the little bird sang a different song. But the parrots could say only, "God save the king and pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. "I knew I was right to send you to bed without any supper," said the queen. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड को बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, और वो अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर दिखाती है, तो वो चिड़िया उसमें बैठ जाती है और वो लोग जाते हैं। वो अपनी बहनों को दिखाती है और हर एक बहन के लिए वो बर्ड एक नया नया गाना गाता है। वो उस चिड़िया को किंग और क्वीन को भी दिखाती है। तो क्वीन बोलती है, "मुझे पता है, मैंने कल अच्छा किया था तुम्हें बिना खाए पिए बेड को भेजने की." दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। ये पैरट से भी अच्छा गाती है, किंग ने बोला। I should have thought you got quite tired of hearing people say, "God save the king," said the queen. "I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too." क्वीन बोलती है कि मुझे पता है तुमको बहुत बोरिंग लगता होगा कि हर कोई एक ही बात बोलता है, "गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग." क्या उनकी और बहनें हैं ऐसा ही उनके पेरेंट्स को भी नहीं टीच कर सकती, नहीं सिखा सकती क्या ऐसे इस बर्ड की तरह गाना गाने के लिए? "The sentiment is admirable," said the king. ये तो ठीक बात है, राजा बोलता है। "And I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly." वो बोलता है कि मैं यही एक ही बात सुन सुन के थक चुका हूँ। They say in 7 different languages, said the princesses. सारी 8 प्रिंसेस बोलती है कि वो लोग तो इसे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं। "I dare say they too," said the king, "but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way that they say it." तो किंग बोलते हैं, "मैं मानता हूँ कि वो बोलते हैं, लेकिन वो जब 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही बात को बोलते हैं तो मुझे अपनी काउंसलर्स का याद आता है। काउंसलर्स का मतलब राजा के दरबार में जो मंत्रियाँ रहते हैं। तो राजा बोलते हैं, "मेरे दरबार में भी तो सारे मंत्री सारे लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, और ये जब एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे काउंसलर्स मेरे आगे बैठे हैं." The princesses were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. सारी प्रिंसेस बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बहुत ही चिंता में रहती है, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश थी, इसलिए वो चारों ओर घूम के गाना गाती है और उनके चारों ओर वो बर्ड भी घूम घूम के गाना गाता रहता है।
Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. "My poor September," they said, "we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot." तो वैसा ही हर दिन चलता रहता है और सारे प्रिंसेसेस 8 प्रिंसेस मिलकर सोचती है और जाके प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोलती है, मेरी बहन, मुझे हमें पता है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा तुम्हारे पैरट जब मर गया होगा, इसलिए हमने सोचा है कि हम सब अपना पॉकेट मनी मिलाकर तुम्हारे लिए एक लवली येलो और ग्रीन कलर का पैरट लाके देंगे। "Thank you for nothing," said September. "I have a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot." तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है, "थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास इतने स्वीट बर्ड है जो कितना स्वीट स्वीट गाना गाती है, लेकिन मैं वो पैरट के साथ क्या करूँगी जब मेरे पास ऐसा सुंदर सा बर्ड है." "Well, my dear," they said, "it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes." They looked around the room and raised their eyebrows. तो वो लोग बोलते, "ठीक है मेरी बहन, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है, लेकिन तुम्हारी चिड़िया कहाँ गई?" वो चारों ओर घूमकर देखते हैं और अपना आईब्रो उठाकर बोलते, "तुम्हारी चिड़िया कहाँ गई?" "Do you mind our asking where your bird is now?" they said. "He has gone to pay a visit to his father-in-law," said the Princess September. तो उनकी बहन बोलती है, "तुम्हें क्या बुरा लगा जब हमने पूछा कि तुम्हारी बर्ड कहाँ गई?" तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि मेरी बर्ड गई है उसके फादर इन लॉ को देखने के लिए। "And what makes you think he will come back?" asked the princesses. "He always does come back," said Princess September. तो 8 प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगी? और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि हाँ वो ज़रूर आएगी। "Well, my dear," said the 8 princesses, "if you will take our advice, you won't run any risks like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room," said the young Princess September. "Safety first," said her sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. तो उनकी बहन बोलती है कि तुम तो श्योर नहीं हो आएगी कि नहीं, इसीलिए तुम अपना पहले अपना सेफ्टी देखो। इतना रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। अगर वो आज आ गई तो तुम उसे अपने केज में बंद करके रख देना, पहले श्योर हो जाओ, नहीं तो अगर वो चली जाएगी तो तुम्हारे पास और कोई भी बर्ड नहीं बचेगा। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है, नहीं, मुझे तो मेरे चारों रूम के चारों ओर घूमता हुआ ही अच्छा लगता है और मैं इसे केज में बंद नहीं करूँगी। तो उनकी सिस्टर बोलती है कि सेफ्टी फर्स्ट, पहले अपने आप को देखो। उसके बाद वो उसके रूम से चले जाती है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत सोचने लग जाती है। पार्ट टू विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।